ତାପରେ ଆସିଯାଏ ସେହି ମହାର୍ଘ ଉତ୍ସବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଉତ୍ସବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ଦିବସ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ନମୋ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ନମୋ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଯାବିନୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ବିଚାରେ ନ ଘଟେ ଜଗତ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ବଡ଼ସିଂଗାର ଭୋଗ ଓ ପହୁଡ଼ ଆଳତି ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ସିଂଗାର ଭୋଗ ଓ ଆଳତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ମୁଖ ଉପରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଖଣ୍ଡୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବକ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ପରେ କୋଠ ସୁଆଁସିଆ ସେବକମାନେ ଚାର ବନ୍ଧା ନିମନ୍ତେ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଦଇତାପତି ଓ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀମାନେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପଟା ଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ସିଂହାସନଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପଟା, ବାହୁଟି, କାନୁଆସି, ଘୋଡ଼, ଶୁକ୍ଳ ଚାଦର, ମୁଠି ମାଠ, କୁସୁମୀ ଚାଦର, ପତନି, ବୈରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବୀର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭୋରରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରୋପିତ କରିବାର ଏକ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଏହି ନୀତିରେ ମାଟି, ଦୀପ, ନଡ଼ିଆ, ଦୁର୍ବା, ପୁଷ୍ପ, ଗୋରଚନା, ଦର୍ପଣ, ଦଧି, ଘୃତ, ଶ୍ୱେତ ସୋରିଷ, ଗନ୍ଧ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶୁଦ୍ଧସ୍ୱର ସେବକ ଏହି ଜିନିଷମାନେ ଆଣିବା ପରେ ପତି ମହାପାତ୍ର, ମୁଦିରସ୍ତ ଓ ପୂଜାପଣ୍ଡା ହସ୍ତକୁ ଦେବା ସହ ଏହା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ଶେଷ ହେବା କ୍ଷଣି ଡୋରି ଲାଗି ହୋଇ ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଜେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ 7 ପାହାଚ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁବ, ତୁଳସୀ ଓ ପୁଷ୍ପରେ ନିର୍ମିତ ଚୂଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 7 ପାହାଚ ଠାରେ ଟାହିଆ ଓ ଚୂଳ ଲାଗି ହେବା ପରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ତତ୍ପରେ ଚକା ଉପରେ ସଂସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ରୁନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନ ହୋଇ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିବା ସହ ସମତାଳରେ ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବକମାନେ ଘଣ୍ଟ ଓ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆଲଟ, ଚାମର, ଛତି ମଧ୍ୟ ପହଣ୍ଡି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇଥାଏ। ବୈରିଖିଆ ସେବକ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଆଗରେ ଚାଲିଥାଏ। 7 ପାହାଚ ନିକଟରେ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପ୍ରଦତ୍ତ ଟାହିଆ ଓ ଚୂଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଟାହିଆକୁ ସଂସ୍କାରକାରୀ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଦଇତାପତିମାନେ ଟାହିଆକୁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଟାହିଆ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଲାଗି ହେବା ପରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତର ମନକୁ ପ୍ଲାବିତ ତଥା ନୟନ ପ୍ରୀତିକର କରାଇଥାଏ। ଠାକୁରମାନେ ସ୍ନାନ ବେଦିସ୍ଥ ଚକା ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିସାରିବା ପରେ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ଭିତଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର 3 ବାଡ଼ରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରିଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ମୈଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି, ଅବକାଶ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ କର୍ପୂର ଜଳ ଓ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ପୋଛିଥାନ୍ତି। ଏହା ଅଧର ପୋଛା ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ଅଟେ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହିକି ଯେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ କ୍ଲାନ୍ତ, ଶ୍ଲାନ୍ତ ଓ ଘର୍ମାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଝାଳ ପୋଛିବା ପାଇଁ 3 ଗୋଟି ରୂପା ପାତ୍ରରେ
कर्पूर जल अधर पोछा जाए। पहंडी विजे शेष पर घंट छता काहाड़ी सह मुदिरस्त और सुना गोसाई सेवक शीतल मंदिर सम्मुखस्थ सुनाकूप निकटरे पहुँची प्रथम जलछेक आनिबा परे अवशिष्ट जल पितल गरा मानकर सुना गोसाई अधिवास घर निकट को आनी थांती। आनंद बजार स्थित चाहणी मंडपर पार्श्वर अस्थायी भाव निर्मित होइथिबा अधिवास घरे 108 गड़ुरे जल रखा जाए। तहिरे चंदन कर्पूर चुआ इत्यादि मिश्रित होता है। गड़ुर मुहरे करिया कना आच्छादित होई तही उपर गोटे लेखा नड़िया रखा जाए। पूर्वे 22 पाहाच ऊपर पार्श्वर थिबा एक सर घर रे एही जल अधिवास करा जाए घर को सील करा जाउथला। विगत 16 वर्ष पूर्वे जलाजीर्ण अवस्था रे रहिथिबा समस्त सरघर गुड़ी को भंगा जीवा परे जल अधिवास निमंते बाउंश चांच और चांदुआ द्वारा एक अस्थायी गृह निर्माण करा जाउछि। जल अधिवास गृह रे रखा जाउथिबा 108 गड़ु जल मध्यरु श्री जगन्नाथଙ୍କ स्नान निमंते 35 गड़ु, श्री बलभद्रଙ୍କ निमंते 33 गड़ु, देवी सुभद्राଙ୍କ निमंते 22 गड़ु एवं श्री सुदर्शनଙ୍କ निमंते 18 गड़ु सुगंधित जल पृथक पृथक भावे संस्थापन पूर्वक अधिवासित होई रहे। पालिया पूजा पंडा रोषहोम सूर्य पूजा द्वारपाल पूजा इत्यादि नीति संपन्न करिथांती। स्नान जल पूजा पूर्वरु प्रतिहारी सेवक माने शोध करी स्नान मंडपर चतुर्पार्श्वर टेरा बांधती और 16 खंभ मानकर जगी थांती। सुआर बड़ू सेवक अमुनिया जल पकाई मंडपटी को परिष्कार करती। सही समय पत्रीबड़ू सेवक स्नान वेदीर सिंहासन उपरे पूजा ठा करिथांते। ठाकुर माने पूर्वरु बैराणी सज लगी हुई बसी था। स्नान पूजा ठा विधि सरिबा परे पालिया प्रतिहारी सेवक जल विजे करिबा पई हातर जोड़ी बेत धरी डाकी जीवा परे गराबड़ू सेवक माने मुहरे गामुछा बांधी जल विजे पई प्रस्तुत होई थांती। गराबड़ू सेवक माने गड़ू धरी जल विजे करिबा समय घंट छत तरास काहाड़ी और बजंत्री सेवक वाद्य बजाई आगे आगे जाउथांती। एही विजय समय तलिच्छ सेवक और प्रधानी उभय हस्त उपर हस्त रखी करपैठ पूर्वक आगे आगे बेदी उपर को जाई थांती। चारि धाड़ी पंक्ति रे जल विजे होई रखा जाय था। जल विजे समाप्त होला परे पालिया पूजा पंडा 3 जन उक्त स्नान जल को 16 उपचार रे पूजा करि थांते। पूजा बढ़िबा परे शंख जल गड़ू मानक ऊपर पड़िबा परे गराबड़ू सेवक अभिमंत्रित जल को नहीं मेकाप धरिथिबा रूपा पिंगण रे ढाली थांती। मंडल कारिका अनुଯାयी पूजा पूर्व जल गड़ू गुड़िक श्री बलभद्रंकर चतुष्कोणी मंडल, श्री जगन्नाथंकर चतुर्मुखी मंडल, सुभद्रांकर कौली त्रिकोण मंडल एवं श्री सुदर्शन मंडल वर्तुल अटे। विधि विधान पूर्वक पूजा बढ़िबा परे धूप जपादी होइଥାଏ। तत्परे जल गड़ू उपरु नारिकेल फल और करिया वस्त्र मान बाहर करा जाए। 3 देवता को ध्यान पूर्वक जगत मंगलार्थे वैदिक समुद्र ज्येष्ठा मंत्र रे सहस्राक्ष मंत्र रे पुरुष सूक्त उच्चारण करा जाए स्नान करा जाए। प्रथमे 3 गोटी गड़ू जोथिरे कि 10 भाग जल और 6 भाग चंदन कर्पूर आदि पड़ी थाए ता पिंगण रे रखा जाए श्रीजू को शिर रे अधे तत्पर अधे मुखरे और सर्वांगरे सही जल धीरे धीरे भक्ति सहकारे ढालती। पर अन्य स्नान जल सबू श्री विग्रह मानक श्री अंग मानकरे ढला जाए स्नान नीति शेष होता है। स्नान नीति बढ़िबा परे पुष्पालक सेवक दिव्य वस्त्र पुष्पमाल्य दयना इत्यादि द्वारा श्री विग्रह मानक मंडित कराई थांती। ताहा परे छेरा पहरा नीति अनुष्ठित होता है। स्नान वेदी उपरकू जीवा पूर्वरु गजपति महाराजଙ୍କ तामजान सिंह द्वार ठारे रही था। एही ठारू राजगुरु श्रीमंदिर पदाधिकारी कर्मचारी और नीति संपृक्त सेवक मानक गहन रे 22 पाबच्छ देई आनंद बजार मध्य को प्रवेश पूर्वक स्नान वेदी रे गजपति महाराज विजे करिथांती। स्नान वेदी उपरे सर्वप्रथमे ठाकुर मानकु गजपति दंड प्रणाम होई गराबड़ू सेवक मानक ठारू हाथुआणी नहीं न्यूछाड़ी होई पुष्पांजलि दियंती। ताहापरे सुना कर्पूर आळती रे कर्पूर बसाई
भंडार मेकअप राजगुरु को देवा पर ताहा संस्कार पूर्वक गजपति हस्त को बढ़ाई दि जाए। गजपति महाराजा आरती करिबा पर सुनार आलट चामर सेवा करते। तत्पर दयाणमाळी सेवक जोगाई शुक्ल पुष्प भंडार मेकअप रूपा पिंगण में धरी था। राजगुरु सुना खड़िका संस्कार करे राजा हाथ को बढ़ाई था। भंडार मेकअप स्नान वेदी उपर सम्मुख भागरे शुक्ल पुष्प आगे पकाउथिबे और गजपति सुना खड़िका धरी वेदी सम्मुख भाग पहरती। यापर घटुआरी रखिथिबा रूपा पिंगण में चंदन पानी भंडार मेकअप हाथ को बढ़ाई था। भंडार मेकअप हस्तरे थिबा उक्त चंदन जल को राजगुरु संस्कार करिबा परे एही संस्कारित जल सिंचन पूर्वक गजपति वेदी सम्मुख भाग को सुना खड़िकार पहरी था। यापर छेरा पहरा नीति संपन्न होता है। छेरा पहरा नीति संपन्न हेबा परे महाप्रभु दिव्य गजबेशरे सुसज्जित होता। जनश्रुति अनुजाई गणपति भट्टंकु एही दिन प्रभु गजानन रूपरे बा गणपति रूपरे दर्शन देइथिबा हेतु महाप्रभुଙ୍କ एही बेश को गजानन बेश मध्य कुहा जाइथाय। महाप्रभुଙ୍କର एही दिव्य गजबेश बढ़िबा परे सकाळ धूप पूजा अनुष्ठित होइथाय। एही दिन ठाकुर मानक उद्देश्य रे गोटिए मात्र नैवेद्य होइथाय। स्नान मंडप उपर धो पखाळ होई टेरा बंधा जिबा परे सकाळ धूपर भोग रोष घर ठारू आनंद बजार दे स्नान मंडप उपर को अणा जाए। ए दिन भोग को घंट छता भोग मध्य कुहा जाए। उक्त दिन सुपकार माने भोग नहीं एही मंडप को जाउथिबार दृश्य अत्यंत मनोरम। भोग आसीबा पूर्वरु रास्ता सफा होई चून पानी पड़ी था। घंटुआ बजंतरी वाद्य बजाऊ थांती। परंपरा अनुजाई केवल एही दिन व्रत होइथिबा सुपकार बालक तथा युवक माने रोष घर अमुनिया भोग द्रव्य बोही स्नान मंडप उपर को आनिबा परे रोष घरे रंधन और रत्न सिंहासन तथा भोग मंडप को भोग बोही पंक्ति रे तोलिबार अधिकार पाई थांती। एही सेवकंकर साड़ी बंधा विधि नथिबारु परंपरा प्रकारे स्नान पूर्णिमा छेक आनिले वर्ष जाक भितरे तोलिबार अधिकार प्राप्त होइथांते। स्नान पूर्णिमा पर्वाणी नीति अनुजाई सकाळ धूपरे श्री विग्रह मानक विभिन्न प्रकार सुमिष्ट पिष्टक अन्न व्यंजन आदि मंडपर चतुर्पार्श्वरे बहुल परिमाण रे तोला जाइथाय। समस्त भोग द्रव्य स्नान मंडप को आसीबा परे महाप्रभुंक बाड़े प्रसाद लगी बढ़े एवं दैनंदिन सकाळ धूप पूजा विधि भली पूजा पंडा माने षोडश उपचार रे एही पूजा करिथांते। पूजा बढ़िबा परे तीन बाड़े आरती अनुष्ठित होइथाय। तत्परे पूजा पंडा पति महापात्र एवं मुदिरस्त एही तीन सेवकंक द्वारा पर्वयात्रा वंदापना अनुष्ठित होइथाय। वंदापना बढ़िबा परे सर्वसाधारण उद्देश्य रे साहाण मेला दर्शन अनुष्ठित होइथाय। एही दर्शन रे भक्त माने महाप्रभुंक निकट को जाई दर्शन करी अपार आनंद लाभ करते। एतद् व्यतीत बड़दाण्डरु मध्य लक्ष लक्ष भक्त एही बेश संदर्शन करी निजको कृतार्थ मणि थांते। साहाण मेला दर्शन बढ़िबा परे लोकमानंकु मंडप उपरु खाली करा जायथाय। ताहा परे श्री विग्रह मानक बेश ओलागी होई मैलम हुए और पुष्पांजलि एवं डोर लगी नीति अनुष्ठित होता है। ताहा परे महाप्रभु फेरी जाती। बाहुड़ा पहंडीर दिव्य क्रम आरंभ होता है। यही विधि गोटी पहंडी अंतर्भुक्त अटे। स्नान वेदी बाहुड़ा पहंडी विजय समय देव दर्शन एक पुण्य और धर्मप्रद बोली ब्रह्म पुराण रे मध्य कुहा जाइछि। महाप्रभु एबे फेरी जाती अणसर घर को। 15 दिन आउ दर्शन होइब नाही। एही समय हैला अणसरर।